PPT. So we have seen like what is IT Act, why it comes, what is the benefits, okay, then how we control it, and number of examples we have discussed regarding this, and what kind of awareness we should follow. Okay, so every day, day by day, we have seen a number of crimes in through cyber laws. They have two we have seen ना कि दो हमने देखे थे कि एक the target of they have the target of computer, your smartphones and all, and other is they use that smartphones and computers as a weapon only to do some kind of crimes, right? So that is, then we have seen list of cyber crimes, which crime comes in what ways, like government में कौन से आते हैं, personal कौन से हैं, and regarding property related क्या है. So a number of crimes we have seen, and all it comes in cyber crimes. This is the list of cyber crimes. Then we have seen some kind of crimes like hacking, corporate espionage, password sniffers, snooping, software piracy, in number of, okay. And we have given example of it, film industry and others, how they make any kind of tune, especially artists, okay, they just make their patent regarding that, or copyright, right? So no one can do this same thing. Then we United Nations Commission on International Trade launch to chapters, which chapter comes in which category, and which crime related on that particular act. Okay, so this is the general information regarding cyber crimes, and we have seen some case studies, Pluto case. Okay, so then this one case, advantages of cyber law, how positively we take it. Okay, and our police system is very strong after that, because they focused on it and they easily catch criminals. Okay, so today we have seen just exact, wait a minute, we'll share it again. So today we have seen regarding IT Act, when it is enacted, what uh, exact objective and all. Okay, because this cyber law is, this same is going offline exams. Okay, so be ready for that, and you ready, you start to write your CCs, a number of questions, solved papers. Okay, because you have too much short time, so you just spend time to solve the papers only, because it's your final year and you have only 2 months. So just fill up your mind ki we have only 60 days, and that 60 days I just focused on our studies, because offline exams, I know last 2 years you forget your writing skills, you missed even the communication skills also. So solve the question papers, a number of CCs already uploaded. So you just keep practicing to write it on time, and not only writing it but read it. Okay, so it's a practice for you, because same words, same things you write and read, so it fit in your mind, and on the time of exam you don't have any kind of fear to write your paper, right? So what is IT Act? Yesterday we have seen IT Act, and how it when it was enacted. So it enacted on 17th May 2000. India is a 12th nation in the world to adopt cyber laws. Okay, India is a 12th nation, means other countries, I don't know it's have or not, but India is the 12th nation in the world to adopt cyber laws. And why it's adopt? To control the crime, especially cyber crime, right? So
IT Act is based on model law in e-commerce adopted by, जो हमने देखा था, यूनाइटेड नेशनल और व्हाटएवर. सो ये यूनिलैटरल है एवरीवेयर, मतलब कहीं पे भी अगर आपका फ्रॉड हो जाता है तो यू कैन इजीली कैच इट, यू कैन इजीली फाउंड इट the person who do it, and it's easily if transactions related to bank transactions related, if you complain on particular time, definitely 24 hours, within the 24 hours we'll get it. So have you seen my screen? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. What is the objective of IT Act? Provide legal recognition for transactions. You know, आपने अगर जैसे आपका ATM कार्ड आता है, वो तो वही कार्ड तो इतना सा होता है, लेकिन उसके अंदर जो पेपर्स होता है उसमें n नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दी होती है. जब भी हम कोई छोटी हम अप्लाई कर देते हैं, वी रियली डोंट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम लोग ट्रस्ट पे ज्यादा जाते हैं कि नहीं हमारा ट्रस्ट है. बट एज अ MBA स्टूडेंट्स मैं आपको सबको यही बोलूंगी, कुछ भी काम करने से पहले whatever the documents you have signed, before sign you read it carefully, take time, tell others, someone कि give me a time to read it and after that will पूरी चीजें, पूरी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है ना वो अच्छे से पढ़िए. मैं बहुत बार ऐसा होता है, वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने क्या किया, LIC का पॉलिसी लिया था, उसे ट्रस्ट था क्योंकि फैमिली मेंबर था, तो उसने बोला कि नहीं यार ट्रस्ट है ले ले, उसने साइन वाइन कर दी, लेकिन उसने क्या किया पता है, नॉमिनी में उसका खुद का नाम डाल दिया. ठीक है, आफ्टर 15 years 10 years, जब उसका उसे पता ही नहीं था, चलो जब उसे लगा कि यार मेरा तो पॉलिसी 20 years हो गया, और फिर जब वो पॉलिसी का अमाउंट लेने वो ऑफिस में पहुंचा, तो उसने बोला ऑफिस वाले ने, यार तुम्हारा तो पॉलिसी का मनी विड्रॉ हो गया. ये पहले की बात है, विड्रॉ कर लिया क्योंकि तुमने तो नॉमिनी का नेम उसमें ये कर लिया है ना. तो जब भी आपके पास, तो वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसने नॉमिनी में उसका, और उसको ट्रस्ट था, तो कोई भी काम स्पेशली मनी से रिलेटेड या कोई भी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, तो आपको खुद को इन्वॉल्व होना है, सारी चीजें पढ़नी है. और ऐसा नहीं कि एक बार पेपर हाथ में आ गया कपबोर्ड में रख दिया, नहीं, एवरी ईयर उसे चेक करिए. व्हाट इट, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि पैसा है, कौन क्या करे कोई भरोसा नहीं. सो यू केयरफुल अबाउट इट. तो पॉलिसी में भी इतनी छोटी छोटी चीजें दी हुई होती है, हम लोग पढ़ते नहीं, हाँ ओके हाँ ओके, बस बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के हम लोग उसे साइन करके दे देते हैं. तो ऐसा मत करिए क्योंकि लॉस आपका है. और ऑलवेज बैंक हो या वो, ऑलवेज एवरी डे वी गॉट अ मैसेज दैट डोंट शेयर योर डिटेल्स टू एनीवन्स. बैंक नेवर आस्क द डिटेल्स ऑफ आवर कस्टमर्स. ओके, सो बी अवेयर अबाउट इट. n number of messages we have received every day, ग्रुप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, n number of, है ना. बहुत सारी कंपनीज बोलती है कि यू नीड टू पे 1000 rupees, आई विल गिव अ जॉब, बट उसे सर्टिफाइड है कि नहीं. और बहुत सारी कंपनीज है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग अंडर इन MSME. ठीक है, तो कल ही मुझे भी एक मैसेज आया था ऐसे ही ग्रुप से कि लुम्बिनी एजुकेशन रिगार्डिंग की ये कंपनी है और ये एजुकेशन का काम कर रही है और इसमें आपको मंथली कुछ मिलेंगे ऐसा वैसा. तो मैंने उसे अच्छे से रीड किया, उसका इंफॉर्मेशन निकाला, एवरीथिंग, उसका साइट चेक किया. ऑब्वियसली उसका वेबसाइट नहीं था. फिर उन्हें मैंने उस बंदे को पूछा, तो ही रिप्लाइड. बहुत बार क्या होता है कि कोई रिप्लाई नहीं करता है, तो मैंने रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया कि यस इट इज ट्रू. फिर उसने उसका सर्टिफिकेट दिखाया कि कैसे वो काम कर रहा है एजुकेशन सेक्टर में, कि उसको उसे स्प्रेड करना है, गो थ्रू मैसेज. एंड उसके पास मैन पावर नहीं है, इसलिए वो ऐसे लोगों को कलेक्ट करके उनको मैसेजेस करके वो सब कर रहा है. तो वो काफी लंबा डिस्कशन था हमारा उसके, तो मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने उसे अप्रिशिएट किया कि ये इट वाज गुड. बट इसमें कुछ तो भी वैलिड होना चाहिए, लोगों को ट्रू लगना चाहिए, क्योंकि मैंने भी उस मैसेज को 2-3 लोगों को फॉरवर्ड किया तो वो बोल रहे थे फेक है, वेबसाइट नहीं है एंड ऑल. बट वो बंदे ने मुझे एवरीथिंग दिखाया कि ये किस चीज में आ रहा है, कैसे मैं उसे काम कर रहा हूँ. तो इट कम्स इन MSME. उसने सर्टिफिकेट दिखाया उसका MSME के अंडर में, उसने कैसे उसे फील किया है, एवरीथिंग. तो कुछ कुछ होता है, बट रीड करना चाहिए हमें हमें ऐसे. और हाँ, बहुत सारी कंपनीज क्या होती है ना कि हम लोग
जैसे विश्वास करते हैं ना, हम ट्रस्ट पे ज्यादा जाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अरे फेक है, अरे उसको फेक लगता है एकदम। कोई भी चीज को ना निगेटिव मत लीजिए, रिक्स लीजिए, बिकॉज यू आर एमबीए स्टूडेंट्स। तो रिक्स लेंगे तो ही काम बनेगा। रिक्स नहीं है, पैशन नहीं है, परसिस्टेंसी नहीं है, तो लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो कभी कभी हमें रिक्स भी लेनी पड़ती है, तो लेकिन बी अवेयर होके अपना काम खुद करना सीखिए। गॉट इट? सो what is the objectives of IT Act? It is provide legal recognition of transaction and carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly referred to as electronic commerce. It's happened. Yesterday I have told you कि be in your room. In this room I am alone, but someone is here to listen me. I don't know who is, but someone is. Okay, in the time of pandemic, that time also a number of people spread fake messages. That time government take an actions and spread messages to everyone. Those who send that kind of fake message or their area of police punished it. And I have saw कि वो आते थे गाड़ी में और वहां उनको पता चला कि ये बंदे ने ये मैसेज किसी को भेजा है, उसको उठा के सीधा जेल में डालते थे। ऐसे 3-4 केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे। तो वो दैट थिंग वाज गुड, रियली गुड, बिकॉज वी हैव सीन ना एन नंबर ऑफ पीपल, कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, कुछ पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ उसे फेक मैसेज में स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव उनका ये यही है कि मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, स्पेशली हम लोग ये मोबाइल ये वो ज्यादा यूज करते हैं। सो लीगल में अगर आप फोन पे किसी से बात भी कर रहे हैं, आप किसी को अब्यूजिंग कर रहे हैं या किसी के साथ ये, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है आज की डेट में। अगर कोर्ट में ऐसी जरूरत पड़ी कि आपने जो बोला, आप फिर तो हम लोग मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, बट समवन हैज रिकॉर्डेड योर स्टेटमेंट। गॉट इट? और वक्त आने पे वो ओपन होता है। एवरीवन नॉट गेट परमिशन टू ओपन इट, क्योंकि एवरी टाइम इसमें ना सारी चीजें सेव है। अगर इसका डाटा कहीं भी, उसको अगर आपका नंबर पता चल गया ना कि भाई ये रजिस्टर्ड नंबर से ही होता है सारी चीजें, वो रजिस्टर्ड नंबर अगर मैंने, जैसे अंकुर जी है, अंकुर जी ने कल क्या बात की, किसको किसको कॉल किए, ये मैं आज भी पता लगा सकती हूँ। मुझे क्या, अंकुर जी का नंबर मिल गया, मुझे सब पता, उसने व्हाट्सएप पे किससे बात की, फोन पे फेसबुक पे किससे बात की, किस कौन कितना है, एवरीथिंग मैं पता लगा सकती। गॉट इट? सो बी अवेयर। बात करते वक्त पोलाइटली बात करिए, किसी से भी। हाइपर हो जाते हो तो बात ही मत करिए, फोन ही मत उठाइए। डोंट यूज अब्यूज वर्ड। गॉट इट? तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी आर नाउ इन साइबर एरिया। सब जगह पता चल गया है अभी, सब जगह एरिया वाइज सबको दिया है। जैसे पैंडेमिक में उन्होंने एरिया वाइज सबको स्प्रेड किया था, जहां पता चल रहा है कि उठा और उसको, तो डोंट डू दिस। दैट इज then the facilitate electronic filing of documents with government agencies and e-payments. Okay, nowadays everywhere is digitization, and we have filled the form, payment, CET examinations and other any kind of examinations. So what we do, we just fill the form, the what green signal is there, and after that we pay and we got a certificate, or we have started any kind of courses, right? So द फैसिलिटी मीन्स ऑब्जेक्टिव में उसके पॉजिटिविटी क्या है कि एक तो आपका कम्युनिकेशन थ्रू हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, सारी चीजें इजीली हो गई है। अभी जो लोग पहले बैंक में लंबी लाइन में लगते थे, तो अभी उनको व्हाट्सअप करना या फिर ऑपरेट करना आ गया है। सो दैट इज द फैसिलिटीज। ओके, सो और इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग स्कैन करके भेज रहे हैं, हमारा काम हो रहा है। आपने भी सीसी स्कैनिंग करके अपलोड किया, आपका सबमिशन हुआ। सो एन नंबर ऑफ गुड थिंग्स हैपेंड, राइट? So that is the amend the Indian Penal Code, Indian Evidence Act 1872, the Bankers Book Evidence Act 1891 and RBI का हमने कल देखा था 1934। तो ये सारी जो तो इन एक्ट के अंडर में हुई है, साइबर क्राइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर।
गॉट इट? नेक्स्ट, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट पेपर तो है, देना ही पड़ेगा बिकॉज लीगल लैंग्वेज. सो एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशंस. So extend to whole of India and also applies to any offense or conversation there under committed outside India by any person. Any person outside India by any person means section 1 or 2 के regarding read with section 75 act applies to offense of contravention committed outside India by any person irrespective of his nationality. If such act involves a computer system or network located in India. अभी हमारे यहाँ ये आने का है, लेकिन अगर आप यूएस यूके में जाते हैं और वहां अगर आप किसी पर्सन का, जैसे अंकुर जी यूके में रहते हैं, ठीक है, तो आई एज अ पर्सन, ठीक है, एज वहां का सिटीजनशिप अगर मुझे मिल गया है तो वहां के सिटीजन्स को राइट है. क्या राइट है? वेट अ मिनट. वहां के साइट है कि जैसे मुझे अंकुर जी का प्रोफाइल देखना है, जस्ट यूज उनका जो है, जैसे हम लोग कैफेज में जाते हैं वहां पे उनका वो रहता है, वहां पे मैं जाऊंगी, अंकुर सिंह डालूंगी, मुझे अंकुर जी दिखने लगेंगे. कहाँ है इस वक्त, घर कहाँ पे है, वो कहाँ रहते हैं, रियल फैक्ट. इतना एडवांस वहां पे साइबर है, इसलिए वहां पे कोई क्राइम नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वहां पे एकदम दिखता है. अपने यहाँ नहीं दिखता है, अपने यहाँ पता चलने लगा है अभी, है ना. जैसे हम कंप्लेंट करते हैं तो पता चलने लगा है, वहां पे कंप्लेंट करने की जरूरत ही नहीं है. वहां पे पता चल गया कि ये सब हो रहा है तो वो तुरंत ही क्या कर रहे हैं, वहां से एक्शन ले रहे. एकदम रिसेंट केस में अभी आपको बताती हूँ. वन ऑफ माई कलीग, ओके, वन ऑफ माई कलीग, his brother-in-law working in a multinational company and he got project in Kenya. Okay, so when he went there, what happened? Suddenly he just booked a car, cab, whatever. When he reached Kenya, booked a car and just want to went their site, project site, and suddenly a big accident happened. He don't know the person and anywhere he don't know. Big accident happened. The truck and his Ola cab, whatever, the crashed, and the driver and the both people are on the spot. Means क्या हो गए, बोल सकते हैं कि कोई उठा ही नहीं वहां से, एकदम ऑन द स्पॉट में ही वो पूरा स्प्रेड ये वो सब. सो ही वाज माय कलीग. उसका फोन जो था वो अदर साइड में गिर गया था, तो उस पर कॉलिंग जा रहा था मेरा, मैं कंटिन्यूअसली कॉलिंग मैसेज कर रही थी, मुझे काम था इसलिए. तो वहां के जो थे उन्होंने फोन उठाया होगा और मुझे ना वो वीडियो उन्होंने भेजा. तो मुझे पहचान में नहीं आया, मतलब आई वाज अननोन कि कौन है ये, क्या भेजा मुझे. आफ्टर दैट उनका मैसेज आया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है. तो वहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उनका, मतलब जहाँ पे वो काम करने जा रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे फोन पे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, एक्सीडेंट वाज टू मच, मतलब ऐसा हुआ है एक्सीडेंट कि दोनों हाथ चले गए हैं, पैर में भी ये हो गया है एंड ऑल. सो मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां पे जब एक्सीडेंट हुआ तो वो जो ड्राइवर था वो तो चला गया, लेकिन वहां पे तो उनके कैमराज में वो सब दिख रहा था ना, क्योंकि एयरपोर्ट के थोड़ी दूर पे हुआ वो एक्सीडेंट जहाँ पे कोई नहीं था. तो उन्होंने, वहां की जो पुलिस थी, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो फॉरन विद इन अ सेकेंड वहां पे गया और उन्होंने वो सारा चेक किया. तो और यही अगर इंडिया में होता था, मैंने बहुत सारी केसेस मुंबई और पुणे में भी देखी है कि जब अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो वो जस्ट ऐसे उठा के ना साइड में रख देते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं, कि मतलब जो फॉर्मेलिटीज है वो नहीं करते. जब अपने यहाँ पे कैसा है, बॉडी को हाथ नहीं लगाते है ना, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक कोई कुछ नहीं करता है. तो सिस्टम का प्रॉब्लम है ये. तो वहां पे ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने तुरंत फटाफट वो सारी चीजें की. तो इतना मतलब वहां पे एक्टिवेशन है, कहने का मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की सामने वाले बंदे को रिकवर करने की, और आज की डेट में वो रिकवर हुआ है. हाँ, थोड़ा सा उसे तकलीफ है, ब्रेन में कुछ याद नहीं आता है, बट इंसान जिंदा है.
और यही अगर इंडिया में होता, हमारे यहाँ तो बस देखते ही डेट, बहुत मतलब डेट बोल देते हैं कि नहीं ये गया काम से, बट ऐसा नहीं होता है, सिस्टम का प्रॉब्लम है। कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि अवेयर होके थोड़ा रिस्क लेके हमें काम करना होता है ना। जैसे साइबर लॉ है, तो ये हमको आपको मिलके इसे इम्प्रूव करना होगा। कोई भी चीज को पढ़ के, हम लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए हमारी जो रीडिंग है वो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, हर लीगली हमें स्ट्रॉन्ग होना है। अगर आपको किसी से फाइट करना है तो लीगली स्ट्रॉन्ग होना है। हम खुद भी इंडिपेंडेंटली फाइट कर सकते हैं अगर आपका नॉलेज परफेक्ट है तो, लीगल नॉलेज स्पेशली। गॉट इट। सो लीगल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको रीडिंग, नोटिफिकेशंस, जो भी क्लॉजेस है आज की डेट में आ रहे हैं उसे पढ़ना, नॉट ओनली पढ़ना है तो उसे अप्लाई भी करना है। अब अप्लाई कैसे करना है? समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, एवरी टाइम यू गेट अ मैसेजेस तो आप इग्नोर करते हो। तो कभी कभी ना टाइम निकाल के रिस्क लेके उसमें जाइए, पैसा तो लगने वाला है नहीं। क्या होगा? टाइम, आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट नो, आपको उससे सीखने को ही मिलेगा। समटाइम्स लेके देखिए रिस्क, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लीगल में, साइबर में मैं बोल रही हूँ, अगर आपको ज्यादा अवेयरनेस या आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ जहाँ पे पेमेंट करना है वहां पे मत जाइए ना, जहाँ पे कंप्लेंट करनी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं इसमें ये सॉल्यूशन हो सकता है, या ये मुझे समझ में नहीं आया, या ऐसा करने से क्या होगा, है ना, तो रिस्क लेके काम करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आपने किया भी तो आप, तो क्या होगा, साइबर में जाके आप एक कंप्लेंट लिख के देखिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो लोग तुरंत आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, और आपका फीडबैक लेंगे उसके बाद। बाकी वो सारी प्रोसेस करते हैं, लेकिन एन नंबर ऑफ पीपल सोचते हैं यार कौन झमेले में पड़ेगा, अपना काम करो, और अपन नहीं वो बार बार पूछेंगे, कुछ नहीं होता है, सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें। अभी जो लोग कॉर्पोरेट्स में और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो वो ऑलरेडी, स्पेशली टैक्स डिपार्टमेंट में या लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनका तो फेस टू फेस डेली ये सब चीजों से होता है। स्पेशली बैंक में भी अगर वो लोन और इसमें काम कर रहे हैं तो उनका तो फेस टू फेस उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। बट जो लोग अवेयर, अनअवेयर है, उनको जानते ही नहीं है किसी चीज के, तो रिस्क लेके करके देखिए, पता चलेगा आपको। ठीक है। सो ये सारी चीजें आती है। तो एप्लीकेशंस होते हैं इसके, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, हम लोग ऑफ एप्लीकेशंस फिलअप करते हैं, है ना। तो इसका ये एप्लीकेशन, उसका ये एप्लीकेशन, हर एक के सेक्शंस होते हैं, उसमें सारी चीजें दी हुई रहती है चीज। जैसे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न पे फाइल करते हैं तो उसमें भी सारी चीजें, कंटेंट क्लियर दिया रहता है कि सेक्शन 1 में क्या आ रहा है, सेक्शन 2 में क्या आ रहा है, सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 85 क्या है, सेक्शन 84 क्या है, एवरीथिंग क्लियर कट क्लॉज वाइज दी होती है। अगर आप उस क्लॉज में आते हैं तो आप उसमें अपना अमाउंट या फिर अपनी डिटेल डालिए, अगर आप नहीं आते हैं तो नॉट अप्लीकेबल करके लिखिए। क्लियर कट दिया होता है, क्लियर कट, है ना। ये सारी बारीक बारीक जो चीजें होती है ना एकदम, उसे हमें पढ़ के आगे जाना चाहिए, पढ़ के आगे जाना चाहिए। गॉट इट। सो सेक्शन 2 में क्या दिया है कि एक्सेस, व्हाट इज एक्सेस मींस गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्शंस or communicating with the logical, arithmetic or memory functions resources of computer resource of network। जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूछते हैं। जैसे हम लोग आजकल गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें भी एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हम फिल करके ही आगे जा सकते हैं। तो वैसा ही इसका होता है कि एक्सेस करना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को गूगल पे एक्सेस करना नहीं आता है। अभी आप लोग तो बच्चे, आज की जनरेशन है, आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट एन नंबर ऑफ पीपल है जो अभी भी वो सारी चीजें या ऐप यूज नहीं करते हैं। लेकिन बी अवेयर, अगर आप ऐप भी यूज कर रहे हो तो भी आपने पासवर्ड सेव करके रखिए, ताकि आपके कलीग्स को या इधर उधर किसी को पता ना चले, क्योंकि पता है क्या हो सकता है कभी भी। सो डेफिनेशंस दी हुई है जो आपको पता है। कंप्यूटर मींस इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डेटा processing device or system which perform logical, arithmetic and memory functions by manipulations of electronic, magnetic or optical impulses, है ना। ये सारी चीजें इजीली, जैसे मैंने अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल में सेव करके रखा है, ठीक है। अगर ये कभी भी अगर मेरे से गुम हो जाता है तो ये इसमें रहेगा, सामने वाला इसका मिसयूज कभी भी कर सकता है, राइट। सो और कोई बहुत ही कम ऐसे बंदे होते हैं जो
ये सारी चीजों पे बिलीव नहीं, लेकिन बैड थिंग्स है, सो बी अवेयर अबाउट इट। सो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज जो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर communications facility which are connected or related to the computer in computer system or computer networks। बीच में हुआ था जैसे हम लोगों ने जूम मीटिंग्स लेना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन आ गया था, तो दैट टाइम हम देख रहे थे कि मीटिंग्स तो हम जूम मीटिंग तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें अदर्स पीपल भी ज्वाइन हो रहे हैं जो मींस मिसगाइड कर रहे हैं या फिर मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो फिर उससे रजिस्टर्ड करना पड़ा। एन नंबर ऑफ थिंग वी हैव सीन, मतलब कुछ भी अगर चीज लॉन्च होती है, कुछ भी हम लोग एडवांस करने जाते हैं, तो उससे क्या आता है, कुछ ना कुछ ऐसा अनसिक्योरिटी उसके साथ हो जाती है ताकि वो उसका मिसयूज कर सके। बट अगर किसी के ध्यान में आती है वो चीजें कि नहीं, दे विल अवेयर अबाउट इट। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सभी को पता है, आगे चलते हैं। सिस्टम क्या है, सिस्टम हर एक का सिस्टम होता है ना, जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम, जैसे साइबर क्राइम का सिस्टम अलग है, कंप्लेंट का अलग है, फायर का अलग है, तो एवरी मतलब उसमें भी डिपार्टमेंट्स है ना, लीगल, सिविल, सोशल, चाइल्ड, वीमेन सेल्स, एवरीथिंग, मतलब हर एक का अलग अलग है, तो अलग अलग सेल्स के अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग सॉफ्टवेयर से उसकी वो इंफॉर्मेशन एक बार पुट हो गई तो वो आपको क्या हो जाती है रियली। और डाटा जो हम आज की डेट में हमें लगता है कि हम डिलीट कर देते हैं, है ना, लेकिन वो डाटा डिलीट नहीं होता है, उसे प्रॉपर वे से डिलीट करना पड़ता है। ये आपको भी पता होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने फाइल बनाई, फाइल डिलीट करने से मेरा डाटा ही डिलीट हो गया। नहीं, आपका डाटा सिस्टम में 4-5 जगह सेव होता है, ये आपको पता होगा, है ना। सिर्फ आप जाके रिसाइकल बिन में जाके डिलीट कर दो तो भी वो डिलीट नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो डाउनलोड में, कहीं ना कहीं वो सिस्टम में सेव रहता है, हिस्ट्री में वो सेव रहता है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी सीरियस पिक्चर्स में वो लोग दिखाते हैं कि वो कैसे कंप्यूटर्स को लेके या लैपटॉप को यूज करके उसका पूरा डाटा निकाल लेते हैं, गॉट इट। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा कुछ लगाते हैं चिप कि उसका डाटा एक जगह नहीं बल्कि 15 जगह, 15 से 20 जगह पे वो सेव हो जाता है, ताकि वो कहीं ना कहीं से उसे मिल सके। जो स्पेशली पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर सेलिब्रिटीज या फिर जो अदर कंट्रीज में 2 नंबर के पैसे कमाने वाले होते हैं, वो लोग ज्यादा यूज करते हैं ये मेथड, ठीक है। आपको बोलेंगे यार मेरा ना, मुझे ना आपका ये मेरा पेन ड्राइव भी, मुझे अपना थोड़ा सा काम करना है, मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ? आप बोलेंगे हाँ यार कर ले। आपको थोड़ी पता वो आपका क्या लेके जा रहा है, नहीं पता है, आपने फ्रेंडली दे दिया, गॉट इट। सो बी अवेयर, डोंट कभी भी आज के बाद कोई भी बोले तो नहीं, ठीक है। So data means representation of information, knowledge, fact, concept of instructions which are being prepared or have been prepared in a formalized manner। पता है कि डाटा क्या होता है, आप इतनी मेहनत से बनाते हो या आपके पास इतनी मेहनत से वो आता है, so how you use it, okay। So that is the data information and processed or has been processed in computer systems, सारा उसी में होता है। और ऑप्टिकल स्टोरेज में मीडिया पंच्ड कार्ड्स, है ना, कार्ड्स के थ्रू आजकल हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पे गूगल पे के थ्रू कर रहे हैं, तो एन नंबर ऑफ सब जगह सेव है। आज आपने कितना पेमेंट किया आपके मोबाइल में सेव है, आपकी एक ही, मतलब वो स्टोरेज में नहीं, एवरी मतलब आपके मेल में ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है, सभी जगह वो ऑटोमेटिकली सेव हो। रिकॉर्ड्स जिसे हम बोलते हैं ना, आपका रिकॉर्ड एन नंबर ऑफ प्लेस पे सेव है। सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डेट रिकॉर्ड्स, डेट जनरेटेड, एवरीथिंग आता है। जैसे आपने अगर कोई फोल्डर कंप्यूटर में आज की डेट में सेव किया है, तो उसमें वो कब का है वो भी दिखाएगा, शो करेगा, राइट। 1 सेकेंड, यस। तो वो सारी चीजें आपको दिखाता है। मतलब आप सोचिए कि आज की डेट में हमारे पास इतना सारा रिकॉर्ड है, इतना सारा डेटा है, जो डेट के साथ कब किया था, कब बनाया था, किसने बनाया था, उसमें मेंशन होता है। नाउ सिक्योर सिस्टम, यू नो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज सिक्योर सिस्टम। अगर आप अभी तो हम लोग बहुत सारी डिवाइसेस यूज करते हैं हमारे डेटा को सेव करने के लिए, सिक्योरिटीज है, वायरसेस यूज करते हैं ताकि उसको हमारा डाटा जो है वो सेफ रहे, राइट।
सो एवरी मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेव करने के लिए हम लोग एंटीवायरस के थ्रू या फिर और किसी चीज को यूज करके उसे सेव करते हैं, या उसे पेन ड्राइव में, सीडीज में सेव करते हैं. Now act is in applicable to a negotiable instrument. What it is? It's a negotiable instrument other than check. As defined in section 13 of the Negotiable Instrument Act 1881. ये आपने पढ़ा होगा. A power of attorney as defined in section 1A of the Powers of Attorney Act 1882 and as a trust as defined in section 3 of the Indian Trust Act 1882. तो at it is an applicable. ये applicable है इस sections के अंडर में. तो अगर आपने पहले होते थे ना चेक के केसेस होते थे, फ्रॉड केसेस, एन नंबर ऑफ केसेस होते थे, लेकिन तब साइबर क्राइम नहीं था. अभी साइबर क्राइम इसलिए बढ़ गया क्योंकि नेट सारी ट्रांजैक्शन डिजिटाइज हो गई है ना. लोग इसका उसका यूज करके पैसा इधर उधर कर रहे हैं, तो केसेस ज्यादा है. पहले रिटर्न में था तो बहुत कम होते थे. सो एक्ट इट इज एन एप्लीकेबल टू विल एज डिफाइंड इन क्लॉज. अगर आपको विल बनानी है तो भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है. बहुत सारे लोग जो विल बनाते हैं तो वो क्लियर कट उसमें लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, किसी का नाम. आपको रीड भी करना आना चाहिए कि नहीं आपने बोल दिया बना दी, उसने बोल दिया हाँ मैंने बना दी. नहीं, आपको खुद को रीड करना है. ट्रस्ट योरसेल्फ, नो वन अदर्स. सो एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द sale or conveyance of immovable property or any interest in such property के लिए तो बहुत होते हैं, स्पेशली विलेजेस में, है ना. जो भी वहाँ का मेयर रहता है, एमएलए रहता है, वो पैसे के लिए लोगों की जमीनें खरीद के उनके साथ फ्रॉड करता है. नाउ ई कॉमर्स, यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस. पूरी यूनिवर्स में ये कनेक्टेड है. उसके टोटल इंटरनेट इकोनॉमी इन 2004 में इतना था, तो आज के तो 10 के प्लस चला गया है. ई कॉमर्स स्पेंडिंग इन 2.5 ट्रिलियन. अभी तो बहुत ज्यादा हो गया. ई कॉमर्स इन इंडिया इन ये आपका पुराना सिलेबस है, 19 का सिलेबस है, इसलिए ये सारी चीजें इसमें दी है. और ई कॉमर्स इन एशिया में 2005 में हुआ था और इंडिया में भी 2005 में हुआ था, जिसका 28% यूज वर्ल्ड में हो रहा था, ओवरऑल वर्ल्ड में. So what is electronic commerce? EC transactions over the internet include formation of contract, delivery of information and services, delivery of content. Right? आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस पर सिग्नेचर करनी है, फिर इंफॉर्मेशन ब्रोशर भेजेंगे, वो आपको पढ़ना है. और आफ्टर दैट जब आपको फील होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, देन यू हैव टू पे इट एंड स्टार्ट. राइट? Now future of electronic commerce depends on the trust that the transacting parties place in the security of the transmission and content of their communications. एक बार आपने 10 लोगों के साथ इंटरैक्ट करना चालू कर दिया किसी कंपनी में, क्योंकि कंपनी का ब्रांड होगा. जैसे टाटा में अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे जो क्लाइंट है ना, वो मेरे क्या हो गए, अभी ट्रस्टवर्दी हो गए, तो मैं उनके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. राइट? वो भी मुझे बता सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ओनली, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. गॉट इट? सो ऐसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में क्या है? सो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, stored in digital form and cannot be perceived without using कंप्यूटर. हम तो आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन के बिना हैंडीकैप हो जाते हैं. राइट? क्योंकि अभी डिजिटल सिग्नेचर्स आ गए हैं, तो हाथ से सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है. बट बी अवेयर, एन नंबर ऑफ पीपल, मेरे जो कलीग्स है जो पुराने, वो तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते. वो बोलते हैं नहीं बाबा, मैं तो पेपर पढ़ूंगा फिर ही साइन करूंगा, मुझे वो नहीं समझ में आता है. तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं. बट ये अभी आपकी जनरेशन तो यही फॉलो करने वाली है, आगे भी आने वाली जनरेशन भी यही सारा डिजिटाइजेशन फॉलो करना है, बट अवेयर रह के ही करना है सारी चीजों को. It can be deleted, modified and rewritten without leave a mark. ये तो हो सकता है. Integrity of an electronic document is generally impossible to verify. ये भी है. A copy is distinguishable from the original. क्योंकि कॉपी है वो, है ना. ओरिजिनल, अभी तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क समझ में नहीं आता है, सेम लगता है. राइट? So be aware about it. It can't be sealed in the traditional way where the author affixes his signatures.
नहीं कर सकते, राइट, ट्रू। द फंक्शंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, declaration, proof of electronic documents carried out using a digital signature based on cryptography, बराबर है। सो वी कांट डू दिस। अगर जैसे आपने आधार कार्ड जिसपे अपना सिग्नेचर है, वैसा ही उसमें अगर हमने कर दिया तो वो पहचान में आएगा। अगर किसी ने बारीक एकदम जाके चेक किया तो उसे पहचान में आएगा कि नहीं ये गलत है, ये डुप्लीकेट है। तो पहचान में भी आना चाहिए, और इतना मतलब वो क्लियर कि हम पहचान नहीं सकते, एकदम ट्रू लगता है आजकल, है ना। डिजिटाइजेशन जो है वो ट्रू लगता है, मतलब ऑनलाइन में बात कर रहे हैं, ऑफलाइन में तो डिफरेंट ही रहेगा। यस, एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। फर्स्ट यूनिट है ये, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट, साइबर क्राइम। नो, ओके। Electronic world, so digital signatures created and verified using cryptography, public key system based on asymmetric keys, है ना, बहुत सारी होती है उसमें। So all algorithm generate two different and related keys, public key and private key, both रहता है। So private key used to digitally sign and public key used for to verify, है ना। हम लोग पहले वहां पे वो देखो ब्राउजिंग चलता रहता है, ब्राउजर गोल गोल वो वेरीफाई करता है, एंड देन मतलब ग्रीन क्लिक का बटन आता है और फिर वो वेरीफाई होता है, राइट। तो वो वेरीफाई क्यों करता है, क्यों इतनी जल्दी? सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में, मतलब मैं ये कल भी पढ़ा है आज भी पढ़ा है, लेकिन किसी ने मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि इतनी जल्दी वेरीफाई क्यों होता है। जैसे हम लोग पहले ऑफलाइन करते थे तो बैंक वाले बोलते थे कि नहीं 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ, 3 दिन के बाद वेरीफाई होगा तब जाके आओ। आजकल इतने जल्दी क्यों होता है? किसी के पास है कोई क्ल्यू? यस, क्वेश्चन। मैम सब कुछ ऑनलाइन हो गया है इसलिए। नहीं, ऑनलाइन तो हुआ है, बट इतने जल्दी कैसे? वो इतने जल्दी कैसे आपको बोलता है कि अप्रूव हो गया करके? क्या प्रूफ है उनके पास? वो कैसे चेक करते हैं? इंटरनेट से। हम्म, इंटरनेट। इंटरनेट से ही काम कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड आपके सिस्टम में सेव्ड है, आपके मोबाइल में सेव्ड है, उसने पढ़ लिया है, उसने देख लिया आपको, उसने फोटो देख लिया, आपके फोटोज भी पता है उसको, सब देख लिया, तो वो तो फट से कर लेगा ना, है कि नहीं। मतलब आप सोचिए कितना फास्ट है ये सिस्टम, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि बाबा ये डॉक्यूमेंट्स है, इसे आप वेरीफाई करो, तो आप क्या करोगे? उसका इधर का साइन देखोगे, उधर का साइन देखोगे, मतलब 4-5 डॉक्यूमेंट लेके बैठोगे तब वेरीफाई करोगे। लेकिन कंप्यूटर को या ये सिस्टम को आज जो आपके हाथ में है उसे टाइम लग रहा है? नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं इसका आधार कार्ड है, यही पर्सन है, इसने ये यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके, गॉट इट। इसलिए वो फास्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसे रीड करने में टाइम नहीं लग रहा है, वो फट से कर रहा है, यस मैम, राइट। राइट। सो दिस इज द वे। नाउ प्राइवेट की यूज डिजिटल साइन, है ना। अभी डिजिटल साइन भी जल्दी बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका वो पहले पूछता है कि यहाँ पे फोटो अपलोड करो, आप कर देते हो। वो बोलता है आपका सिग्नेचर अपलोड करो, वो कर देते हो। तो डिजिटलाइज हो गया ना, बैंक भी डिजिटलाइज हो गया है, उसने तुरंत मांगा, अरे ये आ गया है दिखा मुझे, उसने दिखा दिया, ओके है, फाइन। इसलिए तो फास्ट हो गया है सिस्टम। एन नंबर ऑफ पब्लिक एटीएम से इतना पैसा निकाल रही है, एन नंबर ऑफ पब्लिक इतना जीपे, गूगल पे, फोन पे कर रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। विद इन अ सेकेंड में मैसेज आ जाता है कि इतना आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, गॉट इट। तो आपको भी सिस्टम के साथ चलना है, एडवांस होना है, आपको एडिक्ट नहीं होना है। आप लोग एडिक्ट हो गए हो मोबाइल के, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो, फिर ज्यादा हो जाता है तो फिर हाँ ये हो गया, नहीं, सिस्टम के साथ रहो जैसे अदर कंट्रीज है। Now, what is public key infrastructure? So, allow parties to have free access to the single public key, है ना, सबको मिल रहा है एक्सेस, सब लोग अपना अपना एक्सेस कर रहे हैं। This assures that the public key correspond to the signer private key, signers जो भी है।
सबके राइट सबके पास है। ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज एज इफ दे नो वन अदर, हम उसी पे बिलीव करते हैं जब तक हम एक को जानते नहीं, है ना। ट्रस्ट तो होना ही चाहिए। पार्टीज विथ नो ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट्स ऑपरेटिंग ऑन ओपन नेटवर्क्स नीड टू हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट इन वन अनदर। जैसे हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स का ट्रस्ट होता है कि हमने बोला आपको करना ही है, सो दैट इज अ ट्रस्ट कि ट्रस्टवर्दी है। सो दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट यू हैव टू डू इट। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पीकेआई व्हाटएवर द नंबर ऑफ लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड अदर जुडिशियल पब्लिक प्राइवेट सर्टिफिकेशन। मतलब जितने भी अभी हम लोग फॉर एग्जांपल जो कोर्सेस वगैरह है, तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम करो, हमारा रहेगा। हम लोग भी, उन्होंने भी क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने जितने भी गवर्नमेंट के कोर्सेस सर्टिफाइड कोर्सेस आए उन्होंने भी डिजिटलाइज कर दिया। एनपीटीईएल ने भी पूरा डिजिटलाइज कर दिया है कि जो बच्चा इन्वॉल्व करेगा उसका हम फोटो साइन सब लेंगे, उसने इतने ड्यूरेशन का कोर्स कर लिया, जैसे आपने एसएपी किया अभी, तो उन्होंने सीधा हमको बोल दिया था कि भाई जो बच्चा रेगुलर करेगा उसे ही सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आएगा, अगर वो टेस्ट देता है तो, अगर नहीं देगा तो नहीं। तो ये सारी अथॉरिटीज जो है वो भी उन्होंने क्या कर दिया, इन्वॉल्व, ताकि इजी वे से सारी चीजें हो सके, है ना। इजीली आप लोगों को एक्सेस मिल सके इजीली। अभी आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया फर्स्ट टाइम, मतलब अदर जगह पे सारी जगह एग्जाम्स हो गई थी, बट कुछ कुछ स्टेट में वो नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ सिस्टम का प्रॉब्लम आ रहा था, अभी भी आता ही है। बट आप ही सोचिए इतने बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम, वो सिस्टम को अपडेट करने के लिए कितना टाइम लगा होगा, है ना। और ये अच्छा हुआ एक तरीके से कि इतने मतलब 2 साल में इतना कुछ बदल गया। अदरवाइज हम लोग वैसे ही जहाँ के थे वही रह रहे होते थे, हमें नहीं पता रहता था, या फिर हम लोग यूज टू नहीं होते थे इन सब चीजों के। तो उन्होंने एग्जाम भी हमने ऑनलाइन कंडक्ट किया, मजा नहीं आया वो बात अलग है, बट सिस्टम को अपडेट करना जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने, यहाँ के सब ने क्या कर दिया, एक्सेस दे दिए, अथॉरिटीज दे दी कि यस यू हैव टू डू इट। और उन्होंने जिन्होंने एग्जाम में फ्रॉड किया उन्होंने भी उनको दिया कि नहीं आपने चीट किया है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो फिर भी वो तो गूगल का आशीर्वाद था आपके ऊपर कि आपने सक्सेसफुली कंडक्ट किया, क्योंकि आपको भी पता है डू है तो डोंट्स भी है ना। तो गुड, बट ऐसा ऐसा स्मार्टनेस यूज करने से अच्छा अगर आपने सही में उसे पढ़ के दिया होता तो और मजा। मतलब आज बहुत लोग, जैसे आज मेरे पास 2-3 बच्चे आए थे, वो बोल रहे थे मैम हम ना फोर्थ सेम ना ऑफलाइन ही करेंगे रेगुलर आके, क्योंकि हमें डर लग रहा है, अभी ऑफलाइन एग्जाम होगा ना, 2 साल से तो हमने कुछ राइट ही नहीं किया है, कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। तो इस तरह का फियर था, तो ये फियर नहीं रहता था, राइट। सो मतलब सिस्टम आपको सब चेक कर रहा है, सब जगह से देख रहा है। सो सेंट्रल अथॉरिटी शुड हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड ऑन कितना लेंथ है, कितना सिक्योरिटी है, एवरीवेयर कैमराज है, सब चीज है, वैलिड है सारी चीजें, तो अभी आप इजीली कैच कर लेते हो, मतलब इजीली कोई भी चीज जो है वो कैच हो जाती है। सो द सेक्शन 3 डिफाइंस डिजिटल सिग्नेचर्स, है ना। डिजिटल सिग्नेचर्स का सेक्शन पूछेंगे एग्जाम में, तो इट इज सेक्शन 3 एंड द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ जो आता है ना सिस्टम उनका, क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शंस, तो वो भी डाल दिए ना। जो एक्सपर्ट होता है ना आईटी का बंदा, उसे बहुत पता होता है ये सारी चीजें, जिसने ये हैकिंग वगैरह सीखा है, तो इजीली वो सारी चीजें कर सकता है। द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की आर यूनिक टू द सब्सक्राइबर एंड कंस्टिट्यूट फंक्शनिंग की पेयर्स। तो कुछ नहीं करना, डिटेल्स देना है, वो वेरीफाई करेगा और आपको सिग्नेचर जनरेट करके देगा, जैसा आप चाहते हो वैसा, ठीक है। सो वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पॉसिबल, और वेरीफाई के लिए बहुत ही इजी है वो, ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन। नाउ सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 15 में आता है। इफ एनी एप्लीकेशंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब प्रोसेस होता है उसका, agree to this party concerned, it can be verified that a digital signature at the time it was affixed, जो होता है affixed होता है वो, so unique to the subscriber affixed it, capable of identifying such subscriber easily subscribe हो जाता है in a manner or using a means under the executive control of the subscriber, कोई भी हो, मतलब easily record
आप स्कैन के थ्रू पेमेंट करते हैं, उसका स्कैनर लेके फटाक से, तो कितना टाइम लगता है, हम कितना अच्छा सिस्टम है, फट से हो जाता है। और अभी क्या हो गया, ऑप्शंस बहुत है। जैसे अगर आपने बोला कि नहीं मैम मैं पेमेंट नहीं कर सकता, मेरा बैंक अकाउंट या बैंक में पैसे नहीं है, तो हम लोग बोले जीपे कर, फोन पे कर, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ ऑप्शन है, भीम है, क्या क्या यूपीआई है, कितने सारे ऑप्शंस है। गॉट इट। तो आप कहीं कहीं पे भी आप बच नहीं सकते। और अभी आईटी डिपार्टमेंट तो आपको छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इतने सारे बैंक अकाउंट ओपन करके रखे हैं, तो उसको पता है। और हर बैंक के साथ उन्होंने आधार कार्ड लिंक कर दिया है, भाई इसके ये है कि हाँ चल यहाँ से पैसे नहीं निकल रहे क्या, वो अकाउंट से निकाल, सब देख रहा है सिस्टम आपको। अभी आप नहीं बच सकते, सब देख रहा है, क्या भर रहे हो, क्या मिल रहा है, क्या आ रहा है अकाउंट में, कितना जा रहा है, सब पता चल रहा है सब। इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है सिस्टम अभी। गॉट इट। नाउ सर्टिफिकेट based key management, what it is, so operated by trusted third party। सर्टिफिकेट का जो भी रहता है वो थर्ड पार्टी ट्रस्ट करना होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे कोर्स वगैरह करते हैं ना, जैसे आपको यूके का कोर्स करना है, तो आपको डायरेक्ट यूके में, यूके से नहीं जाना होगा, जो भी उसका थर्ड पार्टी एजेंट होगा वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, वो वहां पे भेजेगा, देन आपको वो अलाउ करेगा। सो प्रोवाइड्स ट्रेडिंग पार्टनर सर्टिफिकेट्स, ट्रेडिंग्स के भी रिलेटेड। देन notaries the relationship between a public key and its owner, means users जो यहाँ पे दिए है ना, यूजर्स है ना, ये मेन है ए और बी, मतलब यहाँ से वो बैठ के इसको भी सेम डॉक्यूमेंट, इसको भी सेम डिटेल्स बता रहा है, इसको भी, और ये इसके हाथ में क्या है, पावर्स है, राइट है, इससे पता चल रहा है ये क्या कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है। गॉट इट। सो दैट इज द की मैनेजमेंट। जैसे सिस्टम्स में होता है, एडमिन में होता है ना, पुलिस डिपार्टमेंट में भी अभी उन्होंने सिस्टम कर दिया है कि उनको कितने कितने और वो इजीली जाते हैं इजीली। अभी ऐसी कोई जगह नहीं है इंडिया जहाँ पे कैमरास ना हो। पब्लिक सारी पूरी रोड पे सिग्नल्स पे उन्होंने लगा दिए हैं, उनको पता चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है, कौन कहाँ से कहाँ आ रहा है। हाँ ऑल ओवर। So essential steps of digital signature process. Now step 1, the signature is authorized holder, unique cryptographic key pair, ठीक है। Then signatures prepare a data message, like for example an electronic message whatever, or computer message. The signature prepare a message। अभी तो इतने सारे डिजिटल डिजाइन के कोर्स भी आ गए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, आप जैसा चाहिए वैसा आप बना सकते हो। algorithms, नंबर ऑफ, एडवांस इतना हो गया कि 2 साल का बच्चा भी इजीली उसे ऑपरेट कर सकता है। so that is the using mathematical algorithm वो भी यूज कर सकते हैं। the digital signatures consist of any kind of message you have to डिजिटल सिग्नेचर टू द मैसेज। हो गया है। अभी हम लोग फैमिली के साथ टाइम नहीं करते जितना हम और लैपटॉप के साथ होते हैं। इतना मतलब हम लोग फ्रस्ट्रेटेड बोलने से इतना काम में और सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं बिकॉज डिजिटाइजेशन हो गया है। और हमारा काम पहले एक ही होता था, अभी डिजिटाइजेशन होने की वजह से हम लोग वर्क कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज पॉजिटिवली करें। Then step 6 में secondary sends digital signatures and the messages replying is electronic। किसी को मैसेज कर सकते हैं। n number of सारे लोगों ने ऐप बनाने सीख लिए। आप अपना पर्सनल ऐप बना सकते हो, आप उसमें अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हो। n number of things you have done। आपका डेटा आप सिक्योर कर सकते हो। जैसे फेसबुक अपडेट होता है और आपको मैसेज आता है कि ये फेसबुक अपडेट हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज हो गई है जो आपको नहीं होनी चाहिए, या तो अवेयरनेस के मैसेजेस भी आता है। गूगल फेसबुक हमें ऑलवेज अवेयर करता है कि ये चीज हो रही है, सो यू अवेयर अबाउट इट। तो उसे आप पढ़िए और उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करिए।
दिए हुए हैं प्रोसेस क्या है. ये the relying party use the signature public key to verify the digital signature. Verification using the signatory public key provides a level of technical assurance that the message came executively from the signatory. जो मैसेज आएगा उसके अंदर के डिटेल्स फीडअप करने हैं, फिर वो वेरीफाई होगा, वेरीफाई होके वो सामने वाले पर्सन के पास जाएगा, वो अलग से वेरीफाई करेगा, फिर आपका और मेरा भी सिग्नेचर्स वेरीफाई होगा, दोनों कंप्यूटर वेरीफाई करने के बाद वो फाइनल करेगा. The relaying party also creates a message of the message using the same secure hash algorithm system का कोड. ठीक है. Then step 9, the relying party compare the two message digits. If they are the same, then relying party knows that the message not be allowed after one time. Message आता है डलर या फिर फेल्ड करके आता है ना, फेल्ड करके मैसेज आता है. ओके, सो the message digest created by the relying party will be different from of the message digest created by the signatories. You have to decide. Now last मतलब step के जो प्रोसेस होता है वो पहले आपका नाम एवरीथिंग इवैल्यूएट करता है, देखता है, और उसके बाद वो सर्टिफिकेट को अपडेट करता है कि आपने जो डिटेल्स दिए हैं वो कंप्लीट है. और क्या है कि जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो तो आपका रिकॉर्ड जो है वो आप जहाँ पे सेव कर रहे हैं वहां पे नहीं है, तो वो एक दो जगह पे भी सेव हो जाता है, लेकिन ढूंढना भी पड़ता है ना. is required in printed or written form under any law, the information in electronic form, so which is accessible so as to be usable for subsequent use, shall be deemed to satisfy the requirement of presenting the document in writing or printed form. जैसे भी आपको चाहिए. हमने अभी इतने नंबर ऑफ कोर्सेज किए, सर्टिफिकेट्स मिले, हमने देखा कि डेटा साइन है, हमारा नाम लिखा हुआ है, और जिन्होंने इशू किया है उन लोगों के भी साइंस वहां पे डिजिटलाइज साइन उन्होंने किए हुए हैं, वो वेरीफाइड है, कंपनी ट्रस्टेबल है, वो सारी चीजें वेरीफाई होते हैं और आफ्टर उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है. उसके क्लॉज है वो एक्सेप्ट करने होते हैं, उसकी सारी चीजों को एक्सेप्ट करना होता है कि ये अगर ऐसा हुआ तो वी आर लायबल फॉर दैट, ऑल एक्सेप्ट होता है. सेक्शन 567 क्या है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स में use of electronic records in governments and its agencies, publication of rules and regulations in the electronic category. को भी लीगल फॉलो करना होगा, रूल्स फॉलो करने होंगे. जैसे कोई भी गूगल आता है, का गूगल फॉर्म आपको भरना है तो उसमें डिटेल्स आएंगे, ये गूगल फॉर्म किस चीज के है, आपको रेस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्या डिटेल्स आपको फिल करना है और सेंड करना है ना, लीगल है. So recognition of electronic records, accessibility of information, same format, particulars of dispatch, origin, then destinations, time, stamps, etc. उसमें according stamps, signatures, उसका records, कब क्या हुआ, उसका designation, every आप तो आपने अगर कोई प्रोसेस किया होगा तो उसका सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं. वो क्या है? लीगल है. ये किस सेक्शंस में आते हैं? 5, 6, 7. जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं सिग्नेचर्स का डिजिटल, तो वो सारी चीजें हमें फुलफिल करके देनी होती है. वेरीफाई होने के बाद ही हमें ये सारी चीजें मिलती है. Got it? So tomorrow see this lesson or the part of this lesson. Anyone want to ask any questions? थोड़ा टिपिकल है बट आएगा समझ. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Thank Bye you, ma'am. bye. Thank you.